स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 12th बायोलॉजी का 5th चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर लेके आई हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि टर्मिनोलॉजीज क्या हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस के चैप्टर में, और इसके साथ ही हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से मेंडल ने अपने 3 लॉ दिए और उसी के बेस पे जो जेनेटिक्स है हमारी उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ monohybrid and dihybrid process. Mendel law are 3 in number, but in case of monohybrid cross, that means we are studied here only one character, one trait will be studied in it. In monohybrid cross we will study only one trait, and on the basis of this monohybrid cross we divided Mendel laws into 2 parts. First is law of dominance and second is law of segregation. In case of law of dominance, dominant itself express everything. This dominant word express everything because number 1, characters are controlled by discrete units. Discrete units means special units, and these are called as the factors. So if anybody asks you what are the factors in case of Mendel laws, so you can say these are the discrete units that express. And second is these always occur in pairs. That means if we talk about tall, then we should write it like capital T and capital T, and if we talk about dwarf, then it should be like small t and small t. That means they always come in pair. Single unit कभी भी नहीं होगी, वो हमेशा ही पेयर में होंगे. Next is in dissimilar pair, one is dominant and one is recessive. As you know that dominant will express itself and recessive will hidden itself in the presence of dominant gene. Here I would also like to discuss that if DNA is here, this DNA will form the RNA and RNA will form the protein. This protein, if functional, remember this, if this protein is functional in nature, then it will show expression. और उसी एक्सप्रेशन को हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, डोमिनेंट है. ये क्या है, डोमिनेंट है. और मान लीजिए एक्स एग्जांपल ले लेती हूं मैं. मान लीजिए हम ए जीन की बात करते हैं, तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ ए प्लस. दिस इज कॉल्ड एज द गेन ऑफ फंक्शन. गेन ऑफ फंक्शन. बट इन केस ऑफ रिसेसिव, रिमेंबर DNA will form the RNA also, but protein is not functional. So in that case there will be A minus, that is loss of function. Understood? प्रोटीन बन रही है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, तो हम क्या कह देंगे कि भाई फंक्शनल ही नहीं है, वो कोई काम ही नहीं कर पाएगी, तो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती. सो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो डिस्क्रीट यूनिट है उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, फैक्टर. फैक्टर हमेशा पेयर में होंगे और इनमें से एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा. तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो फंक्शनल होगा वो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर होगा और जो नॉन फंक्शनल होगा वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर होगा. ओके, अब अगर इसी लॉ ऑफ डोमिनेंस को मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखाना चाहूँ तो मैं क्या दिखा सकती हूँ कि हियर इज प्लांट दैट इज टॉल इन नेचर एंड partner of this plant is dwarf, that is dwarf in nature. Okay, तब जब हमने क्रॉस कराया, ये हमने क्रॉस कराया, ये एरो हमारा क्रॉस का है और हमारे पास क्या पॉपुलेशन आई, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. सो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर डोमिनेटिंग कैरेक्टर होगा, तो ये क्या होगा आपका प्लांट, टोल. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज द F1 जनरेशन. इसी को हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन. और उसके बाद जब मैंने इसी टॉल प्लांट के साथ सेल्फिंग करा दी, सेल्फिंग का मतलब होता है जब हम उसी के साथ क्रॉस करा देते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको, सेल्फिंग. सेल्फिंग कराई तो मेरे पास जो F2 जनरेशन आई उसके अंदर 3 टॉल प्लांट आए और 1 डॉर्फ प्लांट आया. दैट मीन्स हियर 3 प्लांट्स आर टॉल इन नेचर
although one is homozygous, two are heterozygous, and one is again homozygous. And we know that when recessive genes are homozygous in condition, they can express themselves. So here small t is dwarf, but in case of capital T and small t, here capital T is dominating gene that express itself, but small t as recessive gene not be able to express itself. So this is our law of dominance. In law of dominance, we also studied two more examples, and you can say two more parts like incomplete dominance and multiple dominance. Okay, तो वो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे. अब हम बात करते हैं अपने सेकंड लॉ के बारे में, जिसके अंदर है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. जिस तरीके से हमने यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस के ऊपर फोकस किया था, यहाँ पर हमने किसके ऊपर फोकस करना है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना. ओके, हम क्या बात करते हैं कि जो एलील्स होते हैं, और एलील्स की डेफिनेशन हमने पहले ही स्टडी कर ली है कि एलील्स आर द कंट्रास्टिंग और अल्टरनेटिंग कैरेक्टर्स. अगर हम एक टॉल की बात करते हैं तो उसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है ड्वार्फ. अगर हम एक रेड की बात करते हैं तो उसका कंट्रास्टिंग होगा वाइट. ब्लैक की बात करते हैं तो कंट्रास्टिंग होगा वाइट. तो इसी प्रकार से क्या है, जो एलील्स होते हैं उनके अंदर ब्लेंडिंग या फिर मिक्सिंग नहीं होगी. मिक्सिंग इन द सेंस, जब आप एक ब्लैक कलर के अंदर व्हाइट कलर को मिक्स कर देंगे तो इट शुड बी ग्रे, बट इट्स नॉट लाइक हियर. यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है. ब्लेंडिंग हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, लेकिन इस प्रकार की मिक्सिंग नहीं कह सकते आप कि उसका कलर ही चेंज हो जाए. दैट मीन्स हमारी जो F1 जनरेशन बनती है उसके अंदर, ये जो F1 जनरेशन बनी है, अगर यहाँ पर मैं बात कर रही थी तो यहाँ पर टाल और स्मॉल जो है ये आपकी F1 जनरेशन में आए. यहाँ पर कहीं भी रिसेसिव जीन्स नहीं है. होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव जीन्स नहीं है. सो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि ड्वार्फ तो है ही नहीं, लेकिन जब F2 में सेल्फिंग कराने के बाद F2 जनरेशन आती है, ये हमारी F2 जनरेशन है. और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर स्मॉल टी आ गई. दैट मीन्स यहाँ पर आपकी ब्लेंडिंग नहीं हुई है, यहाँ पर आपकी मिक्सिंग नहीं हुई है, और इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया आपका स्मॉल टी ड्वार्फ फिर से प्रेजेंट हो गया. और यही इन्होंने कहा है दैट बोथ कैरेक्टर्स आर सीन इन F1 जनरेशन बट नॉट सीन इन F1 जनरेशन. F2 में आपको दोनों कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं. टाल प्लांट भी आपको मिल रहा है और ड्वार्फ प्लांट भी मिल रहा है. ये आपके क्या है, ये तीनों जो हैं आपके, दीज आर योर टाल प्लांट एंड दिस इज योर ड्वार्फ प्लांट. Okay, but in F1 generation there is no such dwarf like plant. Okay, अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है. जब गैमीट्स बनते हैं, अब यहाँ पर जब गैमीट्स बनी है तो देखिए गैमीट्स बनते हुए कैपिटल टी और स्मॉल टी से एक गैमीट गया है. ओके, और यहाँ से भी एक गैमीट गया है. तो ये गैमीट जो है इनकी मिक्सिंग नहीं हो पाई है, ब्लेंडिंग नहीं हो पाई है. दैट मीन्स दे एबल टू सेपरेट देमसेल्व्स इन F2 जनरेशन. Able to separate themselves in F2 generation. So, in this lecture, we have discussed that law of dominance and law of segregation. These two laws itself describe so much in genetics. We studied so many crosses in genetics in monohybrid cross. And always remember one thing, monohybrid cross के अंदर जो आपकी रेशो आएगी दैट शुड बी 3:1. बट इफ दे आस्क इन केस ऑफ जीनोटाइप देन इट शुड बी 1:2:1 बिकॉज 1 इज होमोजाइगस, 2 इज हेटेरोजाइगस एंड अगेन 1 इज होमोजाइगस. बट होमोजाइगस बट टॉल एंड हेटेरोजाइगस that is also tall, but gametes are dissimilar. Again here gametes are similar in nature. Okay, so students, आज का मैं लेक्चर यहीं पर समाप्त करती हूँ. किसी को अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी एंड स्टे विद अस. थैंक यू.